اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کے تجزیہ میں ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعے کے متعلق جو عالمی نظام کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ وینزویلا ایک خود مختار ملک اور اس کے بر سر اقتدار صدر کا اغوا۔ یہ سازش، سوال کیا ہے کہ یہ کیا کوئی فلمی کہانی ہے یا امریکی خارجہ پالیسی کا پرانا آزمودہ اور بے نقاب چہرہ؟ امریکہ جو دنیا کو جمہوریت، انسانی حقوق، قانون کی بالادستی کے لیکچر دیتا نہیں تھکتا، آج خود کھلی بدماشی پر اتر آیا ہے۔ جس ملک کے پاس تیل ہو، وسائل ہوں، اپنی آزاد پالیسی ہو، وہ امریکہ کے نشانے پر کیوں آ جاتا ہے؟ کیا وینزویلا کے صدر کا اغوا عوامی مینڈیٹ کا اغوا تو نہیں؟ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ لاطینی امریکہ کی تاریخ گواہ ہے، جہاں بھی امریکہ کو اپنے مفادات خطرے میں نظر آئے وہاں بغاوت، پابندیاں، سازشیں اور اب اغوا تک، یہ سب کچھ جائز سمجھ لیا جاتا ہے۔ آج کے ہم پروگرام میں جانیں گے کیا یہ تیل کی جنگ ہے اور اس کی ایک ناکام کوشش ہے کیا، اور یہ رجیم چینج کی ایک ناکام کوشش ہے، اور سب سے اہم سوال، کیا عالمی قانون صرف کمزور ممالک کے لیے ہے؟ آج ہم پردہ چاک کریں گے، نام لیں گے اور وہ سوال پوچھیں گے جو عام طور پر پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ پروگرام دیکھیے گا۔ خاص طور پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ وینزویلا کے صدر کے اغوا کے بعد اب خدا نہ خواستہ جمہوری اسلامی ایران میں کوئی رجیم چینج کرنے کی سازش کی جائے گی، تو کیا سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب جانتے ہیں آج محترم ناصر شیرازی کے ساتھ گفتگو میں۔ السلام علیکم محترم ناصر شیرازی صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ موضوع بہت اہم، اور اہم اس لیے کہ ایک ایسا واقعہ جو عالمی نظام کے لیے بہت بڑا چیلنج۔ سب سے پہلا سوال تو میرا یہی، کیا وینزویلا کے صدر کے اغوا کی کوشش دراصل اس امریکی خارجہ پالیسی کا تسلسل ہے جو اس نے چھوٹے ممالک پہ اپنی دھونس جمانے کے حوالے سے ہمیشہ سے روا رکھی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ کا شکریہ انجم بھائی۔ دیکھیں، جو گلوبل آرڈر ہے یہ ڈیٹریٹ ہو چکا ہے، اور ویسٹ، جس کو جب ہم کلیکٹیو ویسٹ کہتے ہیں، لیڈ بائی امریکہ، تو انہوں نے اگرچہ یہ خود اپنی طرف سے سمجھتے تھے کہ ہم نے گلوبل آرڈر جنریٹ کیا ہے، جس میں امریکہ میں جو ہے وہ مجسمہ آزادی جس کو کہا جاتا ہے، اسٹیچو آف لبرٹی، اور اسی طرح یورپ کے اندر جو نارمیٹو ویلیوز ہیں کہ انسانی حقوق، لبرلزم، ڈیموکریسی، خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق، اسی طرح جو ہے وہ جنگوں کے درمیان عالمی قوانین، یہ وہ ساری وہ باتیں تھیں جس کی بنیاد پہ یورپ نے اور امریکہ نے خود کو نارمیٹو ورلڈ کہا، اور بظاہر یہ کہا کہ ہم دنیا کو تہذیب یافتہ بنائیں گے، ہم تہذیب یافتہ ہیں اور ہم دنیا کو تہذیب یافتہ بنائیں گے۔ یہ نقاب ان کا اتر گیا ہے غزہ وار کے اندر۔ یہ مرحلہ ایک مرحلہ ہے، اور غزہ وار میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ساری ان کی ہپوکریسی تھی، ڈوئل سٹینڈرڈ تھے، اور یہ پولیٹیکل سنوگنیرنگ تھی، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور جب ان کی سٹیٹس کو اپنے نیشنل انٹرسٹ جو انہوں نے اسرائیل کو بچانے کی صورت میں طے کیا تھا، اس کے لیے کھڑے ہونا پڑا، تو انہوں نے اپنی ساری ویلیوز جو ہے وہ قربان کر دی۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے جس میں کلیپس آف انٹرنیشنل آرڈر ہے۔ وہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل لا اور آرڈر کا کلیپس، خاتمہ۔ وہ ہے کہ جب امریکن پریزیڈنٹ جو اوورال لیڈ کرتا ہے یورپ کو، وہ کہتا ہے کہ کوئی بین الاقوامی قانون نہیں ہے، جو میں کہتا ہوں وہ قانون ہے۔ یہ ایگزیکٹلی وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائٹ از رائٹ۔ اور اب امریکہ جو ہے وہ اس قانون کے مطابق ہی انہوں نے وینزویلا کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ اسی قانون، یعنی مائٹ از رائٹ کا قانون، یعنی میں طاقتور ہوں اور اب کوئی اور قانون نہیں، بلکہ جو میں چاہتا ہوں
वही कानून है और उसी के ऊपर अमल करना पड़ेगा। तो यही लैंग्वेज उन्होंने इंडिया के साथ, आप देखिए मोदी के साथ बातचीत की तो ये कहा कि मोदी को मुझे खुश करना होगा, लिहाजा मोदी सिर्फ एक चीज के ऊपर तवज्जो दे और वो ये कि मुझे खुश करे। फिर गल्फ स्टेट्स के बारे में उसने कहा कि मुझे इनकी सेलिब्रेशंस की नहीं जरूरत, इन सबको पता होना चाहिए कि जो मैं कहूं वो करना है। फिर इसी तरह आपने देखा उसने कनाडा के बारे में क्या कहा कि उसको मैं अपना जो है वो सूबा बना लूंगा। और अब ग्रीनलैंड का मामला आपके सामने है, यूरोप के जर्मनी से 6 गुना बड़े रकबे के ऊपर वो टेक ओवर करने के लिए बिल्कुल कह चुका है कि मैं मिलिटरी इस पे कब्जा करूंगा। तो वेनेजुएला एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि अब पर्दे भी उतर गए हैं और अब आप माइट इज राइट को खोल के बयान कर रहे हैं और आप समझते हैं कि इस वक्त आप जो है ना वो सिर्फ अकेले पावरफुल हैं और आप जो है वो इस पावर को जैसे चाहें एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक जिमनी बात मैं और कहूंगा, इसको हम कहते हैं मोनोरो डॉक्ट्राइन। ये डॉक्ट्राइन जो है वो चंद साल पहले इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है इसमें अमेरिकन हेजमनी को कंट्रोल रखने के लिए जो है वो बनाया गया था, जिसका बुनियादी हदफ ये था कि ये जो साउथ लैटिन अमेरिका या साउदर्न अमेरिका है ये बिल्कुल पैरालाइज्ड है, ये कभी भी अपने कदमों पे खड़ा ना हो और अमेरिका को ये इख्तियार होगा कि वो जैसे चाहे इनको जो है वो डिस्टेबलाइज रखे ताकि अमेरिका स्टेबलाइज रह सके। इसीलिए इसको हम कहते थे बैकयार्ड ऑफ अमेरिकन इंपीरियलिज्म, यानी साउथ अमेरिका को या लैटिन अमेरिका को बैकयार्ड ऑफ अमेरिकन इंपीरियलिज्म कहते हैं। इंपीरियलिज्म के फ्रंट यार्ड क्या है? नॉर्दर्न अमेरिका। फ्रंट यार्ड का काम क्या होता है? उसमें फूल होते हैं, उसमें लॉन होता है, उसमें एंट्रेंस होती है, गुलजार होता है, वो आपकी अपीयरेंस है, आपका इमेज है। और बैक यार्ड का क्या काम होता है? वो डंपिंग के लिए होता है, कूड़ा करकट रखते हैं, वो सामान जो आगे की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, इसको इस्तेमाल करते हैं और फ्रंट को जो है वो अब मैनेज रखते हैं। तो बस अमेरिकन इस्तेमारियत का पिछला सेन जो है वो रिसोर्सेज सारे इधर हैं, लेकिन ये बैकयार्ड ऑफ अमेरिकन इंपीरियलिज्म है। अब यहां पर उसको चैलेंज है और मल्टीपल चैलेंजेस हैं, जिन चैलेंजेस में एक चैलेंज जो है वो ब्राजील है, और लेकिन ब्राजील चूंकि बहुत बड़ा मुल्क है, मैक्सिको है वो भी बड़ा मुल्क है और ब्राजील ब्रिक्स मेंबर भी है, लिहाजा उसने जो इनिशिएट किया वो वेनेजुएला से किया। और वेनेजुएला में ये जो एक्ट किया है, अभी चूंकि आप आगे सवाल करेंगे तो मैं बताऊंगा, इस एक्ट को तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो एक्ट ऑफ वार काउंट किया जा रहा है, क्रिमिनल है। और अगरचे उसने अपने इख्तियार जो वो कह रहा है कि मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी अमेरिका के अंदर 48 और 52 की मेजॉरिटी से एक लॉ पास हुआ है जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट को बाउंड किया है कि अगर वो कोई और मिलिट्री एडवेंचर करना चाहे वेनेजुएला के अंदर तो उसे पहले सेनेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें 5 जो रिपब्लिकन हैं उन्होंने भी डेमोक्रेट्स की हिमायत की है और अमली तौर पे एक बाइंडिंग और एक चेक जो है इसके ऊपर नाफज किया है। और अगर इस पे मैं बात सेनेटर्स अमेरिकन की बात करूं जिनमें बर्नी सैंडर एक है और बास दीगर सेनेटर है, तो उनका खुलासा ये है कि वो ये कहते हैं कि इससे अमेरिका सेफ नहीं हुआ, अनसेफ हुआ है और अमेरिका को 2 शक्लों में इसकी कीमत देनी पड़ेगी। एक मनी की शक्ल में, क्योंकि जब आप मिलिट्री एडवेंचर करते हैं तो उसके ऊपर स्पेंडिंग होती है, और दूसरा ब्लड की शक्ल में, फिर आपके अपने पर्सन जो है वो मारे जाते हैं। और बर्नी सैंडर ने भी तकरीबन यही बात की और उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा आगाज किया है कि जिसके नतीजे में पूरी दुनिया में फिर ये कानून हो जाएगा कि जो भी ताकतवर है वो दूसरे को मिलिटरीली उठाएगा और ये सोवरेनिटी और सोवरेन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है ये खत्म हो जाएगा। सोवरेन स्टेट का कांसेप्ट यही है ना कि स्टेट छोटी और टाइनी भी हो तो उसकी सोवरेनिटी है, जमीन पे, समंदर पे, उसकी जियोग्राफी के ऊपर, और उसके अंदर नॉन इंटरफेरेंस होगी। तो अब ये टोटल खत्म कर दिया है और अमेरिका अपने हकीकी जिसको वैशियाना चेहरा है उसके सामने, उसके साथ जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप में सामने आ गया है। और ये भी ज़हन में रखे कि इसका अब जो खमियाजा है वो सिर्फ एशिया को नहीं भुगतना पड़ेगा और उनके अलाइज को नहीं भुगतना पड़ेगा जो हमारे रीजन में है, बल्कि इसका बड़ा खमियाजा खुद यूरोप को भुगतना पड़ेगा। और यूरोप को भी अपनी, जिसको कहते हैं ना, टू टेस्ट इट्स ओन मेडिसिन, उन्हें भी अपनी इस मेडिसिन का जायका जो है वो चखना पड़ेगा। ये बिल्कुल नासिर साहब, आपने जो बात की ना कि यूरोप को भी इसका जायका पर चखना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि जो सॉवरेन स्टेट की बात छोटे बड़े मुल्क की, और अमेरिका ने, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में बताया कि इस निज़ाम ने अपने आप को बड़ा मुहज़्ज़ब, इंसानी हकूक और हर किस्म के कुर्राए अर्ज़ पे हकूक का चैंपियन बनाया हुआ था। लेकिन अब क्या ये वेनेजुएला की खुद मुख्तारी पे हमला नहीं? अमेरिका में बेशतर खामोश, यूरोप खामोश,
روس اور چائنا کی دبی دبی آواز، جرمنی کی دبی دبی آواز، برطانیہ کی دبی دبی آواز، تو ایک ملک بڑا ہو یا چھوٹا اس کی خود مختاری پہ حملہ نہیں، یہ کیا؟ نہیں، یہ تو بہت واضح ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اب دنیا جو ہے چونکہ اس کے اوپر جو ایک اعتراض کیا ہے ان کے اپنے رینکس کے اندر سے، انہوں نے کہا اب اگر چائنا جو ہے وہ تائیوان کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے وہ کیسے انلیگل ہوگا، اور اگر پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے وہ زیلنسکی کو کیپچر کر لیتے ہیں وہ کیسے انلیگل کہلائے گا. تو جیسے یہ لیگل ہے ایسے ہی وہ لیگل ہے. آپ اس کو جو ہے وہ ایک آمر سمجھتے تھے، وہ زیلنسکی کو آمر سمجھتے ہیں، وہ تائیوان کو حکمرانوں کو آمر سمجھتے ہیں. وہ جب چاہیں پھر ان کو وہ جو ہے ملیٹریلی کیپچر کریں گے، دے کین ڈو دیٹ. ٹھیک ہے، تو بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑی رانگ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. لیکن امریکہ آل پاورفل نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور امریکہ اپنے اندر اس وقت ایک خوف رکھتا ہے، اور اس خوف کو اوور کم کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے. میں خود آپ سے پوچھتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال لے کے ہم اسی کے اوپر آگے بڑھتے، چونکہ آپ نے سوورینٹی اور اس کی بات کی ہے، کہ اگر یعنی اگر ہم اسی سٹینڈرڈ اور اسی کی بنیاد کے اوپر بات کریں گے تو پھر پوری دنیا میں ایک ایکویشن سیٹ ہو جائے گی کہ جو بہت پاورفل ہے وہ دوسرے کے اوپر اسی طریقے سے اٹیک کرے گا، اور پھر آپ دنیا کو انارکی کا شکار کر دیں گے، اور دنیا میں ایک نیا انریسٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو اس کی بنیاد ظاہر ہے امریکن پریزیڈنٹ نے رکھی، لیکن یہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. وہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ خود ویک ہے، اور اپنی ویکنس کو اوور کم کرنے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں، جب بھی کوئی اپنے اندر احساس برتری شو کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے احساس کمتری ہوتا ہے. ہر برتری یعنی سپیریورٹی کمپلیکس کے پیچھے احساس کمتری ہے. تو جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے وہ اس کو اصل میں کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دکھائے کہ میں بڑا طاقتور ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں، امریکہ اپنی پوری ملٹری مائٹ کے باوجود اسرائیل کو نہیں بچا سکا. 2 سال کی غزہ جنگ کے باوجود اسرائیل نتائج نہیں لے سکا. امریکہ اپنی تمام ملٹری مائٹ اور اٹیک کے باوجود ایران کے ساتھ پہلی بار دنیا کی تاریخ میں ہوا کہ 2 نیوکلیر اسٹیٹس نے ایران کے اوپر اٹیک کیا، اور نان نیوکلیر اسٹیٹ نے ان کو نہ فقط یہ کہ افیکٹو ڈیٹرنس شو کر دیا، بلکہ ان کو اتنا نقصان پہنچایا کہ وہ امریکہ جو چند دن پہلے، چند گھنٹے پہلے انکنڈیشنل اوبیڈینس کی بات کر رہا تھا اور ایویکویٹ تہران کی بات کر رہا تھا، اسے انکنڈیشنل سیز فائر کے اوپر آنا پڑا. تو یہ جو خفت ہے نا، اس کو چھپانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں. لیکن آپ کا کیا خیال ہے، اس سے وینزویلا مینج ہو گیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے لاطن امریکہ مینج ہو گیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ اس خطے میں سیف ہو گیا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل اس کے برعکس سچویشن ہے. اور اب پیرو کے اندر، وینزویلا کے اندر، یوراگوئے کے اندر، نکاراگوئے کے اندر، کیوبا کے اندر، میکسیکو، برازیل، ایک شدید لہر ہے اینٹی امریکنزم کی، اور شدید نفرت ہے اس وقت امریکی استعماریت کے خلاف. جیسا کہ آپ نے مدورو کی بیٹے کی تقریر سنی ہوگی نیشنل اسمبلی کے اندر، پھر اسی طرح آپ نے ان کی جو وائس پریزیڈنٹ جن کو ابھی پریزیڈنٹ کے طور پہ انہوں نے حلف اٹھایا اس کی تقریر سنی ہوگی. پھر آپ اس طریقے سے پبلک گیدرنگز ہوئی ہیں وینزویلا کے اندر، وہ آپ نے امپریشن دیکھا ہوگا. تو اب جو عوام ہے نا، ان کے اندر نفرت جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے، اور کوئی بھی امریکہ کے سلوگنز کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ امریکہ کی فارن پالیسی میں امیڈیٹ ریزلٹ تو شاید آپ کو ملے، لیکن الٹیمیٹلی امریکہ کے لیے پہاڑ جیسے مسائل کھڑے کر دیں. اور ایک میں اور عرض کروں کہ اس کا امپیکٹ امریکہ کے اندر آئے گا، چونکہ امریکہ میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان امیگرینٹس کی ہیں جو ساؤدرن امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نیو یارک کے اندر بھی اور دیگر شہروں میں بھی وینزویلا کے جو شہری ہیں انہوں نے بھی بہت بڑا احتجاج کیا ہے. اور آئندہ دنوں کے اندر یہ تمام ساؤدرن امریکہ کا یہ جو سینٹیمنٹ ہے یہ امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ نظر آئے گا، اور امریکہ سے باہر ساؤدرن امریکہ کے اندر بھی نظر آئے گا. اور اس ہیمسفیئر کے اندر امریکہ اب اپنے آپ کو سیف اور پروٹیکٹر نہیں محسوس کرے گا، بلکہ اب اس کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اگرچہ اس میں اب بلڈ شیڈ زیادہ ہوگا، کیونکہ جب بھی گلوبل آرڈر چینج ہوتا ہے تو اس میں ایک بڑا بلڈ شیڈ اور ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ خوفناک کرائسس ضرور ہوتا ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ نظر آ رہا ہے. اچھا نصب، لاطینی امریکہ کی تاریخ گواہ ہے کہ جہاں بھی امریکہ کو جب بھی اپنے مفادات خطرے میں نظر آئے، وہاں بغاوت، وہاں پابندیاں، سازشیں، اور اب تو اغوا تک سب کچھ جائز سمجھ لیا جاتا ہے. اگر یہی حرکت روس یا چین کرتے تو کیا دنیا خاموش رہتی اسی طرح جیسے اب خاموش ہے؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے کہ قطعاً خاموش نہیں رہتے. ایک آپریشن ہے، میں اس کا نام بتا، آپریشن کنڈور. جی
ऑपरेशन अमेरिका ने, चंद ऑपरेशन है जो इस रीजन के अंदर लॉन्च किए साउदर्न अमेरिका के अंदर, उनमें से एक जो है वो कुंडोर है। कुंडोर ऑपरेशन क्या था? उस ऑपरेशन के जरिए से इन्होंने इस पूरे एरिया के अंदर चुन चुन के उन लोगों को जो डेमोक्रेट थे, जो इंसानी हकूक की बात करते थे, जो आइंदा पॉलिटिकल टेक ओवर कर सकते थे, और उन इलाके के जैसे चिल्ली दीगर इलाकों के आमरों के खिलाफ खड़े थे, उनके जो है वो उनको मरवाया, चुन चुन के मरवाया है। ठीक है, एक हिस्ट्री है जो ओवर्ट और कोवर्ट ऑपरेशंस की जो अमेरिकन CIA ने इस पूरे रीजन के अंदर किए हुए हैं, और तकरीबन हर मुल्क के अंदर किए हैं। निकारागुए में किया है, क्यूबा के अंदर किया है, अभी ताजा थ्रेट जो उसने दिया है वो भी आपको पता है कि उसने जो है वो पैराग्वे को दिया है, दीगर को थ्रेट्स दिए हैं वाज़ेह तौर पे। तो अब जाहिर है कि ये लोग भी अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जो आपने बात की है चाइना और बिलखसूस रशिया, रशिया थोड़ा सा अंगेज है फॉर द रीजन यूक्रेन, और रशिया की ख्वाहिश ये है कि अगर उसकी कोई डील हो जाए और वो यूक्रेन से फ्री हो जाए तो उसका भी अल्टीमेट टारगेट है कि वो अमेरिका को फिर कन्फ्रंट करेगा। लेकिन शायद इस वक्त उसकी अपनी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है और सैंक्शनड है। अभी अमेरिका ने 500 गुना टैक्स जो है वो टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो भी दुनिया में कोई मुल्क अमेरिका इससे रूस से जो है वो तेल की खरीदारी करेगा। इंडिया के साथ भी यही मसला है, जिसकी वजह से तकरीबन 60% इंडिया ने परचेजिंग जो है वो कम कर दी है और रूस के लिए। लेकिन चाइना जो है ना, वो आप देखते हैं कि वो बहरहाल एक ग्रो कर रहा है और अभी गैर जरूरी किसी कन्फ्रंटेशन में उलझ नहीं रहा। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि चाइनीज जो है वो आइंदा खड़े नहीं होंगे और अपना रोल नहीं प्ले करेंगे। मेरा ख्याल है दे आर लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी, और वेनेजुएला इज एन अपॉर्चुनिटी। वो इसमें खड़े होंगे और अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन और तरीके के साथ। चूंकि अमेरिका चाहता है कि उनको ड्रैग करे किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, शायद वो नहीं अभी आना चाह रहा है। लेकिन अभी जैसे ये ग्रीनलैंड वाला मैटर है, तो ग्रीनलैंड वाले मैटर के अंदर भी चाइना का एक, उसको आर्कटिक जो है वो रोड कहते हैं, जैसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है ना, इसे आर्कटिक सिल्क रोड कहते हैं, उसके ऊपर अमेरिका जो है वो ऑक्यूपाई करना चाहता है और उसको डिस्टर्ब करना चाहता है। तो कन्फ्रंटेशन बहुत वाजे है, और मैं नहीं समझता कि चाइनी और रशियन इस वक्त जो है वो डायरेक्ट मिलिट्री उसमें नहीं आना चाहते अमेरिका के साथ। लेकिन उनका जो प्लान है, या जो मुझे समझ में आती है, वो ये है कि वो ये समझते हैं कि अमेरिका फरूपाशी की तरफ है, डिक्लाइन की तरफ है, और अमेरिका जो है वो क्रम्बल कर रहा है। और इस झटके से जब अमेरिका जो है वो गिरेगा तो वो अज खुद गिरेगा, और चाइना और रशिया जो एक ग्लोबल ऑर्डर को तरतीब दे रहे हैं, जिसमें ब्रिक्स एक ऑर्डर है, जिसमें SCO सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्डर है, ये आइंदा दुनिया के अंदर प्रिवेल करेंगे, जिसकी तरफ अभी रिसेंटली अपनी मिलिट्री नुमाइश में जो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड थी, चाइनीज प्रेसिडेंट ने जिसकी तरफ इशारा किया है, वो मेरा ख्याल है कि उसी को इंडिकेट करती है। और दे आर ऑन द पाथ जिसके जरिए से वो अब अमेरिका को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। और अमेरिका को यही प्रॉब्लम है, वो समझ रहा है कि उसका जो दुनिया के ऊपर ग्लोबल हेजमनी का पीरियड था वो ओवर हो गया है, और उसको इस कैफियत को ओवरकम करने के लिए भी वो इस तरह के इकदाम कर रहा है। और यही चीज उसे ईरान के खिलाफ ये जो रिटोरिक इस वक्त अमेरिका ने बुलंद किया हुआ है, उसके भी पीछे रीजन यही है, क्योंकि इसी अमेरिका ने ईरान से शिकस्त खाई है। चूंकि ईरान एक सीरियस चैलेंजर के तौर पे और सक्सेसफुल कंटेंडर के तौर पे सामने आया है, तो वो एक प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं ताकि उसके नतीजे में वो अपनी उस वीकनेस को ओवरकम करें और शो करें कि नहीं, अमेरिका जो है वो स्टिल जो है वो ऑल पावरफुल है। जबकि वो जानते हैं कि जिस डेल्टा फोर्स ने यहां पर वेनेजुएला में एक कामयाब एडवेंचर उनको करा दिया है, यही डेल्टा फोर्स ईरान में 1980 में 80 में उसने ऑपरेशन किया था। और उस ऑपरेशन के नतीजे में सहराए तबस में उनके सारे जहाज भी टकरा गए थे, उनके बहुत सारे मैरीन जो वो मारे गए थे, उनके मिलिट्री पर्सन मारे गए थे। और उसके बाद जो है वो जब वो अपने कांग्रेस में गया अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो उसने कहा कि हर चीज जो है वो हमारे हाथ में थी, लेकिन अल्लाह शायद ईरान के साथ था और हम जो है वो फेल हुए इसके अंदर। ईरान जो है वो जाहिर है उसको एक सीरियस चैलेंज दे रहा है। तो जब मैं इसका एक खुलासा करूं तो ग्लोबली इस वक्त चैलेंज जो है वो अमेरिका के लिए बढ़ते जा रहे हैं। इमीडिएट उनको एहसास नहीं हो रहा, लेकिन अभी बदलते दिनों के अंदर देखेंगे कि ये सूरत बिल्कुल विजिबल है। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं, इसराइल ने तारीख में कभी 2 साल जंग नहीं लड़ी। 2 साल जंग के बाद आज भी गजा में हमास है, आज भी लबनान में हिजबुल्लाह है। इसका मतलब है जो स्टोरी वो बनाना चाहते थे वो नहीं बना सकी। और अभी बाबल मुंदब भी है, अभी यमन भी है, अभी इराक के अंदर भी दोबारा बड़ी अच्छी
जो है वो हाशिद दुशाबी ने टेक ओवर किया है, बड़ी अच्छी पोजीशन ली है, और जमहूरी इस्लामी ईरान ने भी इस अस्करी फतह के जरिए से अमेरिका की हेजमनी में एक बड़ा आप कह लें कि डेंट डाला है, और एक जबरदस्त इंडिकेटर दुनिया के लिए क्रिएट किया है कि अमेरिका इज नो मोर अ पावर अनटच्ड अनटचेबल, यानी कोई उनको छू भी नहीं सकता। उनके स्ट्रेटेजिक एसेट के ऊपर ईरान ने अटैक करके और एस्केलेशन लेडर अपने हाथ पे लेके आखिरी अटैक अपनी तरफ से करके ये साबित किया है कि वो ना खौफजदा है और ना ही अमेरिका उनको बुली कर सकता है। तो ये वो चीजें हैं जिसने अमेरिका को इस जगह पर ला खड़ा किया है कि कैसे वो शो करे कि नहीं हम अभी भी रेलेवेंट है और बड़ी ऑल पावरफुल है। जी अच्छा नाज़ साहब, आपने ईरान की सूरत हाल पे बात की, इस पे मैं सवाल करने से पहले मौजूदा हालात में ईरान के हवाले से जो अमेरिका रवैया अपना रहा है, एक अहम सवाल जो ज़िमनी सा है कि अमेरिका जमहूरियत के नाम पर आमरीत क्यों मुसल्लत करता है, ये क्या उसकी नफ्सियात है? देखिए ये जैसे कुरान में भी एक टर्मिनोलॉजी है ना कि जो इस्तेमार है वो तामीर के नाम पर आता है और तखरीब करता है, ये कुरानी टर्मिनोलॉजी है। इसी तरह अगर आप देखें, अगर अमेरिका इराक में टेक ओवर करने चाहता है तो क्या वो स्लोगन ये रखेगा कि मैं आपके तेल के कुओं के ऊपर कब्जा करना चाहता हूं और मैं आपके मुल्क में आमरीत मुसल्लत करना चाहता हूं? बिल्कुल भी नहीं कहेगा। स्लोगन हमेशा अच्छा होगा, सौदा तभी बिकता है और बिट्रेल तभी होता है, धोखा तभी दिया जाता है। लिहाजा अमेरिका पूरी दुनिया में बज़ाहिर चैंपियन बनेगा इंसानी हकूक का। लिहाजा वो अमेरिका जिसने 70,000 बेगुनाह फलस्तीनियों का कत्लेआम करवाया और किया और उसमें शरीक जुर्म है, वो अमेरिका दुनिया में चैंपियन बनेगा किसका? इंसानी हकूक का। वो अमेरिका जिसने गुआंतानामो बे बनाया, वो अमेरिका जिसने अबू ग़राइब जेल बनाई और दुनिया में बदतरीन ह्यूमन राइट वायलेशन की, वो लोगों को लिबर्टी प्रोवाइड करेगा। वो अमेरिका जिसने जो आज भी दुनिया के बदतरीन आमरों का सबसे बड़ा सपोर्टर उनके साथ खड़ा है, वो अमेरिका, खलीफा हफ्तार की बात करें और बहुत सारे, वो अमेरिका जो है वो दुनिया को वो डेमोक्रेसी प्रोवाइड करेगा। तो ये मेरे ख्याल अब नकाब उतर चुका है, लेकिन हमेशा जो बुरे से बुरा डाकू भी होगा, चोर भी होगा, तो वो बिलाखिर अपने स्लोगन अच्छे रखेगा, लेकिन स्लोगन सिर्फ स्लोगन होंगे, असल काम वो नहीं होगा, बल्कि असल काम कोई और होगा। तो ये स्लोगन्स हैं और स्लोगन्स के जरिए से वो पेनिट्रेट करते हैं डेमोक्रेसी, इंसानी हकूक, जमहूरियत और जो सिविलियन राइट्स। लेकिन आप ये देखेंगे कि उन्हें इसराइल के अंदर होने वाले मुजाहरे और वहां पर जिस तरीके से लोगों को दबाया गया वो नजर नहीं आएगा। उन्हें खुद अमेरिका के अंदर अभी ये जो खातून जिसको ये अभी अमेरिका की स्टेट मिनेपोलिस में बेटी के हमरा कत्ल किया गया, पर पूरे अमेरिका के अंदर मुजाहरे हुए हैं, तो वो उनको वो नजर नहीं आएंगे और उन्हें वो सिलेक्टिव डेमोक्रेसी चाहिए। और कौन सी डेमोक्रेसी चाहिए अंजू भाई? बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस डेमोक्रेसी में किसको लेके आना चाह रहा है? शाह ऑफ ईरान, उसके बेटे को। यानी वो इतना भी पर्दा नहीं रख रहे भाई, डेमोक्रेसी तो आपको हम यहाँ इलेक्शन कराएंगे, जो आ जाए उसको ले जाएंगे। वो कह रहे हैं शाह ईरान को लेके आना है, यानी एक गुलामी मुसल्लत करनी है, एक आमर को लेके आना है। तो मेरा ख्याल है कि अब तो वो बहाने भी बाकी नहीं रहे जिसके जरिए से लोगों को मोक करते हैं या धोखा देते हैं। बड़ा वाज़ेह है दुनिया के लिए कि अमेरिका वो मुल्कों को तकसीम करता है। वो जिस मुल्क में डेमोक्रेसी के नाम पे आएगा उसने 25 लाख इराकियों को मर्डर किया है। जी बिल्कुल। स्टोर करने आया उसने तकरीबन इतनी ही तादाद के अंदर अफगानियों को मर्डर किया है। उसने पैरालाइज कर दिया, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है उस लीबिया को, जिस लीबिया का इतना पैसा होता था उसे समझ नहीं आती थी कहाँ खर्च करे। उसने उस सूडान को तकसीम कर दिया है। उसने पूरे जहां वो गया है उसने वहां तकसीम और नए इख्तलाफात वो शुरू किए हैं। तो ये कभी भी इनसे कोई एक मुल्क, कोई एक एरिया ऐसा नहीं है जहां आप कह सके कि उनको खैर मिली है अमेरिका से। खुद पाकिस्तान की, मैं चूंकि फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पढ़ाता हूं और उसमें पाकिस्तान के रिलेशनशिप, मैं हैरान होता हूँ। 48 में अमेरिका ने बिट्रे किया, 65 में अमेरिका ने बिट्रे किया, 71 में अमेरिका ने बिट्रे किया, कारगिल वार में अमेरिका ने धोखा दिया, अफगान वार में अमेरिका ने धोखा दिया, वार ऑन टेररिज्म में अमेरिका ने धोखा दिया, न्यूक्लियर जो पाकिस्तान ने एक्सप्लोजन्स किए उसके ऊपर अमेरिका ने धोखा दिया। फिर भी हम उसकी गोद में जाते हैं। लेकिन अमेरिका की तो तारीख धोखे देने की है, एक बार भी वफा की तारीख नहीं है। जो अपने दहाइयों से
غلاमियों की तरह पीछे दुम, कुत्ते की तरह दुम जैसे वो सर हवा के पीछे चलने वाली बात होती है, वो कैफियत यूरोप ने की है कि आपने कहा वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है इराक के अंदर, तो टोनी ब्लेयर जो है, जो पूडल ऑफ अमेरिकन इंपीरियलिज्म कहा जाता था, वो खड़ा हो जाता है, वो कहता है जी हैं, सबको पता था कि नहीं है। तो वो आज उसी यूरोप के साथ क्या हाल कर रहा है, किस तरीके से उसको जो है वो बिलखसूस रशिया के मामले में भी उन्होंने तनहा छोड़ दिया, उनके इक्तिसादी मामलात में भी तनहा छोड़ दिया, और अभी उसी यूरोप को हड़प करने के चक्कर में ग्रीनलैंड को टेक ओवर करने की बात कर रहा है। तो बस एक बात से ऐड करता हूँ, मैंने आज मुख्तलिफ आज 4 या 5 टीवी प्रोग्राम्स थे, तो मैंने एक बात की, मैंने कहा लोग कहते थे अमेरिकन दुश्मनी से डरो, जो समझदार हैं वो कहते हैं दुश्मनी फिर निभा लेंगे, क्योंकि दुश्मन की दुश्मनी मालूम होती है, अमेरिका की दोस्ती से डरो, इसलिए कि वो जिससे दोस्ती करेगा उसकी पुष्ट में खंजर मारेगा। अच्छा नाज़िर साहब, एक बड़ा अहम सवाल वो ये कि ख़ास तौर पे जमहूरी इस्लामी ईरान की सूरत हाल पे आपने बात की। गुज़िश्ता दिनों जमहूरी इस्लामी ईरान में जो महंगाई के हवाले से अवाम ने एहतजाज किया, तो उसे ईरानी सदर, ईरान के रहबरे मुस्लिमीन आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई ने जायज़ समझते उनसे मकालमा किया और मामले को हल करने की सतह पर ले आए। लेकिन 8 जनवरी को अमरीका ने एकदम ये कहना कि जी ईरान में कोई कत्लो गारत हुई तो हम बराह रास्त इक़दाम करेंगे, तो उसके बाद वहाँ यानी 20 अफराद फिर यानी फसाद गिरी और फितना पर्दाजी पे उतर आए। तो क्या दुनिया अमरीकी बदमाशी को यूं ही बर्दाश्त करती रहेगी या कोई अमली मज़ाहमत भी सामने आएगी, जैसा कि अब ईरान में वो फसाद बपा करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि अवाम फिर भी पुरअमन है? देखिए, मुज़ाहमत तो हो रही है, अपने अपने अंदाज और अपने अपने तरीके से हो रही है, और ये मुज़ाहमत ही थी जो फलस्तीनियों ने की, लबनानियों ने की, यमनियों ने की, ईरान ने की और इराक ने की, और मुज़ाहमत आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। चाइना सरेंडर नहीं किया, रशिया खड़ा है, सस्टेन कर रहा है, और दुनिया के और कुछ ममालिक हैं वो भी कर रहे हैं। नए नए जो है वो ग्रुप्स बन गए हैं, जैसा कि मैंने कहा ब्रिक्स और SCO, ये अमेरिकन हेजमनी के मुकाबले में बने हुए हैं, तो वो अपने अंदाज से जो है वो चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि ईरान के अंदर महंगाई या ये जो तूफान आया, देखिए ये तूफान महंगाई का बिल्कुल आया है, और ये दुरुस्त है कि हमें उसे एक्नॉलेज करना चाहिए। है कहां से आया? कोई ईरान के अंदर कोई बड़ा ब्लंडर हुआ है ताजा, कोई बड़ा पकड़ा गया है? बाबा, इन ह्यूमन सैंक्शन जो अमेरिका ने नाफिज की हैं उसकी वजह से है, और ताजा एक स्नैप बैक मैकेनिज्म था जिसमें यूरोप के 3 कंट्रीज ने ईरान के ऊपर, जिसमें बरतानिया है, जर्मनी और फ्रांस है, इन्होंने ईरान के खिलाफ नई सैंक्शंस का निफाज किया है, जिससे ईरान की करेंसी पे दबाव पड़ा है और जो है वो क्रैश कर गई है। और ये जो इन्फ्लेशन आई है, ये इन्फ्लेशन उसकी वजह से है, अमेरिकन इनह्यूमन सैंक्शंस की वजह से है। और बार बार अमेरिका जो झूठ बोलता है कि हमारा टारगेट कौन है, ईरानी हुकूमत है, नहीं, उनका सैंक्शंस का डायरेक्ट टारगेट ईरानी अवाम है, ताकि ईरानी अवाम जो है उस सफोकेशन में जाए और अपनी हुकूमत के खिलाफ जो है वो निकले। तो पहली बात यह है कि अब ईरानी अवाम जो है वो कुरूने वुस्ता में नहीं रहते, उन्हें नजर आ रहा है कि अमेरिका ने क्या किया है मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका ने क्या किया है अपने एलाइज के अंदर। उन्हें पता है कि अगर अमेरिका ईरान के अंदर आएगा तो ईरान की बल्कनाइजेशन करेगा, टुकड़े टुकड़े करेगा। लिहाजा एक तो बात यह है कि जो ईरानी अवाम है वो कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अमेरिका और इजराइल, जो क्लियर एनिमी है और जिन्होंने भी चंद दिन पहले हजारों ईरानियों को शहीद किया है, वो उनको जो है आप कह लें कि फैसिलिटेट करें। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है, एक तादाद जिद्द इनकलाब लोगों की है, एक तादाद जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर दाइशी अनासर की है, एक तादाद जैसा कि तुर्की और इराक के बॉर्डर की है। इन सब की रिक्रूटिंग की हुई है अमेरिका ने, इनको फेडरेशन किया है। और जो जिनको आप पहले कह रहे थे, पहले थे मुजाहरे जो बाजार बुजुर्ग से शुरू हुए, तो वो मुजाहरे थे, नेचुरल थे, कोई तोड़फोड़ नहीं थी, कोई अनरेस्ट नहीं था, वो मुजाहरे किए और चले गए। उसके बाद उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। अब क्या है, अब राइट्स हैं, अब बलवे हैं, अब जलाओ गिराव है, अब मस्जिद पर हमले हो रहे हैं, अब है वो मज़ारात के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये तो ईरान में नहीं सोचा जा सकता। इसका मतलब है ये कौन सा ग्रोह है? ये वो ग्रोह है जिनका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये वो ग्रोह है कि जो बुनियादी तौर पे प्योर अमरीकी मिजाज रखते हैं। तो अब ईरान के लिए आसान हो गया सेग्रीगेशन करना कि मुजाहिरीन, मसलन मुजाहिरीन क्या करेंगे। मैं आज आपके जरिए से चैलेंज करता हूं, 1 लाख मुजाहिरीन ले आओ, एक 10 करोड़ की आबादी के मुल्क में आप 1 लाख मुजाहिरीन ले आओ, और 1 लाख मुजाहिरीन को आप ईरान के वली असर स्क्योर में बिठा दो, आप कर लो।
वो बैठे एहतजाज करें, आते रहें जाते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 करोड़ पूरा बंद कर लो। है किसी जगह आपको 10,000 5,000 बंदे भी इकट्ठे नजर आए? आपको राइट्स नजर आते हैं जो जलाओ गिराओ और भागो, ये वाला काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आकाओं को कोई रिपोर्ट देनी है। अब ईरान के लिए आसान हो गया कि वो फर्क करे कि ये एहतजाज करने वाले नहीं है, उनके साथ तो बातचीत भी है, मुज़ाकरात भी है, उनके हक का एहतराम भी है, जो इश्यूज हैं मिसमैनेजमेंट के या फर्ज कर कहीं करप्शन के भी हैं, तो वो इक्तिसादी सतह उनको हल करने के लिए गवर्नमेंट रेडी है, ठीक है। लेकिन ये जो राइट्स हो रहे हैं, ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, ये अब राइट्स हैं, ये तो बलवे हैं जी। इन ये सलूक नहीं होगा, क्योंकि ये प्योरली अमेरिकन एजेंडा लेके आ गए। और मेरे ख्याल बड़ा दुरुस्त कहा है सुप्रीम लीडर ने, उन्होंने कहा है कि आप अपने घर की खबर लो, जो अपने मुल्क के अंदर अपने मुजाहिरीन को सेटिस्फाई नहीं कर सका, वो आपको कहां सेटिस्फाई करेगा इस मुल्क के अंदर। तो जाहिर है ये अमेरिकन एक जिसको आप कहते हैं नफसियाती जंग है और साइकोलॉजिकल वारफेयर है, जिसमें उन्होंने एक प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरानी इनकलाब जो है ना, वो अब आपको ना एक रंग दिखाएगा। अभी आने वाले अय्याम बड़े इंपॉर्टेंट है, ये माह रजब के आखिरी अय्याम है, फिर आप देखें आइंदा शाबान आएगा, फिर अय्याम है, इनकलाबी ईरान जो है वो बाहर निकलेगा। और आप देखेंगे कि वो इतने बड़े अवामी इज्तिमात करेंगे कि उसके सामने ये वाले प्रोटेस्ट जो है वो कोई चीज नजर ही नहीं आएंगे, और अवामी ताकत के साथ और वहदत के साथ वो इसका मुकाबला कर लेंगे। लेकिन इसमें जो बड़ी चीज हुई है वो ये है कि अमेरिकन अज़ाइम बेनकाब हो गए हैं, वाज़ेह हो गया है कि जो चीज वो मिलिटरीली नहीं हासिल कर सके, वो थ्रो सॉफ्ट को या मसलन जिसको आप कहते हैं कि एक जंग नर्म के जरिए से वो इसको हासिल करने की, या वेलवेट रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, या ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके जरिए से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि अब पहले अगर अमेरिकन अज़ाइम और अमेरिकन एनिमिटी कोई कवर्ड थी ना, तो अब वो कवर्ड नहीं है। अब जंग लोगों ने देखी है, अब ट्रंप का पूरी दुनिया के अंदर एटीट्यूड लोगों ने देखा है, लिहाजा लोग जो है वो अंधे और बहरे नहीं है। हाँ, एक ग्रोह यकीनन ऐसा है, वो एक आइसोलेटेड ग्रोह है, वो ईरान को रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन होता क्या है, आप खबर छोटी सी इसी तरह बनती, पूरा वेस्टर्न मीडिया बैठा हुआ है, एक खबर नहीं देंगे प्रो रेवोल्यूशन जो अभी रैलियां हो रही हैं, आपने वीडियोस देखी हैं, एक खबर नहीं देंगे। तो जब मीडिया बायस्ड हो और इस तरीके से चीजों को दे रहा हो, तो हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के ऊपर जरूर देखना चाहिए, और बहुत सारा इस वक्त जो है वो चीजें ऐसी अवेलेबल हैं। तो ये अमेरिका जो है वो इसमें फेलियर का शिकार हो गया है। हो सकता है ये थोड़ा बहुत प्रोलॉन्ग हो जाए, चंद दिन मजीद लग जाएं, लेकिन जितना इनकलाब को हम जानते हैं, जिस तरीके से इनकलाब ने अवाम में अपनी जड़ें बनाई हुई हैं, जिस तरीके से लाखों शुहदा की एक फरहंग है और वो सिलसिला जारी है सारी खानदानों के अंदर, तो ये इनकलाब ऐसी चीज नहीं है कि जिसको जो है वो ये ट्रंप जैसे जो है वो अदम इस्तेकाम का शिकार कर रहे हैं और एक रजीम चेंज ऑपरेशन जिसे वो अपनी दानिश में कहते हैं वो कर लेंगे। बल्कि मुझे जो लगता है वो ये है कि अब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो एट होम नए प्रेशर्स का सामना करने वाला है। और हमेशा ये होता है कि जब आप घर में प्रेशर फेस कर रहे हो, तो आप अपने किसी एनिमी के मुकाबले में फिजा बनाते हैं ताकि आपको डोमेस्टिक सपोर्ट मिल जाए। शायद इस तरह की कैफियत क्रिएट करना चाह रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन नासिर साहब, जो आपसे गुफ्तगू हुई कि वेनेजुएला के सदर के अगवा वाले प्रोमो के जरिए अमेरिका ये समझा था कि ईरान में भी खुदा ना खास्ता रजीम चेंज की कोई नाकाम कोशिश को अपनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका जुमला ही कि इनकलाब अब अपना रंग दिखाएगा, और रहबर मुस्लिमीन के जुमलों के मुताबिक कि वो अपने घर की खबर ले, इनकलाब इंशाअल्लाह ता ज़हूर इमाम ज़माना कायम रहेगा। नासिर शिराज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हाजरीन और सामीन, हमारी इस गुफ्तगू को सुनने के बाद इस्लाम टाइम्स की वेबसाइट, हमारे सोशल मीडिया चैनल पे अपनी राय, तजावीज़ और तबसरे से ज़रूर नवाजिएगा। नासिर साहब, इंशाअल्लाह आपसे जुड़े रहेंगे, मज़ीद इन मौज़ूआत पे बातचीत होती रहेगी। शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।